conduction and transmission of nerve impulse. That means how nerve impulse is generated, and after generation how it is conducted, okay, and then how it is transmitted to the next neuron. Okay, so we'll detail discuss. तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक है generation, how impulse generated, then conduction, generation हो गया, ये कैसे conduct होगा, ठीक, उसके बाद ये कैसे transmit होगा from one neuron to the next neuron, ठीक. So three different steps are there: generation, conduction, transmission. Okay, so we should start the lecture. Okay. Okay. If you see the NCERT books, some important points are there to explain those points. Okay. So NCERT says that neurons are excitable cells because their membranes are in a polarized state. Very, very important points. It is most important points. Neurons are excitable cells. ये जो point है, इसका importance है NCERT book है. Neurons are excitable cells because their membrane are in a polarized state. Okay. Can you say और कौन से cells हैं human body में? Those are polarized like neurons. Reply. Human body में what are the cells which are polarized or excited similar to the neurons? Neurons are polarized state. Yes, muscle cell. So our neurons and muscle cells, they are the excitable cells. Excitable cells means they can generate and conduct the impulse, electrical signal. That's why they are called excitable cells. And they are always in a polarized state. That means when they are in a resting condition, yes, Radhe Radhe beta. Okay, Adarsh Dubey, Radhe Radhe. So polarized state. तो मेरे को बताओ, what do you mean by polarized state? Anyone? What do you mean by polarized state? कौन बता सकता है? What is the meaning of polarized state? अगर हम बात करेंगे कि polarized state तुम्हारा क्या होता है? Suppose we discuss that. Okay. So NCERT book में लिखा गया है. Okay, yes. So polarized state. ठीक. In the resting condition, neurons are in the polarized state. इसका मतलब तुम्हारा क्या होता है? Suppose ये nerve का surface है. Suppose this is the surface of the nerve, और this is exolemma. Suppose ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा हो गया exolemma. In the resting state is polarized. इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ? मतलब ये bear charge, उसका outer surface में तुम्हारा क्या होता है? Always positive charge होता है. In the resting state, ठीक? And उसका जो inner side होता है, it always bears negative charge. So this is the meaning of polarized state. समझ में आया? Polarized state का मतलब क्या होता है? In the resting state, the surface of the neurons, they bear the charge. ये neutral नहीं होते, ठीक? You can also measure the potential difference. If you measure the potential difference, it becomes how much? It becomes minus 70 millivolt. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं RMP. That is called RMP. Means resting membrane potential. समझ में आया? Yes. Again I am repeating. In the resting state, the neurons are polarized state. मतलब ये impulse अभी conduct नहीं कर रहे. They are not conducting any impulse in the resting state. The outer side become positive, inner side become negative, and the potential difference become how much? Minus 70 millivolt. That is called resting membrane potential. Clear? Resting membrane potential. So this is the meaning of polarized state. Okay? Okay. So they are polarized state. फिर क्या बोला? Different types of ion channels are present on the neural membrane. Different types of what? Ion channels are present on the neural membranes, and these ion channels are selectively permeable to different ions. हम पढ़ेंगे. When neuron is not conducting any impulse, मतलब resting में तुम्हारा है, the axonal membrane is comparatively more permeable to
potassium ions and nearly impermeable to sodium ions. तो ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का, ठीक, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ठीक, थोड़ा देख लेना इसको। मतलब इन द रेस्टिंग स्टेट में तुम्हारा क्या होता है, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेएबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमेएबल टू सोडियम आयन। यस, सपोज मैं उसको जूम कर दे रहा हूं, ठीक। ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट तुम्हारा है। वो बोला क्या, रेस्टिंग स्टेट में द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेएबल टू पोटेशियम आयंस, इम्परमेएबल टू सोडियम आयंस। तो लेट मी एक्सप्लेन, ठीक, वो क्या बोल रहा है, एक स्लाइड हम ले लेते हैं, ठीक। ये बोल रहा है जो न्यूरॉन का सरफेस है, न्यूरॉन का सरफेस, द सरफेस कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, आयन चैनल सब है। न्यूरॉन का सरफेस में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल सब है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स है, एंड दीज आर परमेएबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, एंड दीज आर परमेएबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस। मेरे को बताओ क्या क्या चैनल सब होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का सरफेस है, इसमें बहुत सारे आयोनिक चैनल्स होते हैं। जैसे कि तुम्हारा एक चैनल तुम्हारा क्या होता है, सोडियम चैनल होता है। सपोज मैं बता रहा हूं, एक होता है तुम्हारा सोडियम चैनल, ठीक, एक तुम्हारा होता है सोडियम चैनल, एक होता है हमारा पोटेशियम चैनल, ठीक, एक तुम्हारा होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी एक तरह का चैनल ही है, और एक तुम्हारा है सोडियम पोटेशियम पंप। So these are the different types of channels on the surface of the membrane. Some sodium channels are there, some potassium channels are there, and some a kind of pump also there, that is sodium potassium pump उसको हम बोलते हैं, ठीक। तो एनसीईआरटी बुक तुम्हारा क्या बोल रहा है, रेस्टिंग कंडीशन में, इस रेस्टिंग कंडीशन बच्चा तुम्हारा है, इन द रेस्टिंग कंडीशन में तुम्हारा क्या है, दिस इज परमेएबल टू पोटेशियम आयन। इसका मतलब पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा बाहर की तरफ जा रहा है, इट इज परमेएबल टू पोटेशियम आयन, ठीक, पोटेशियम आयन, बट इम्परमेएबल टू सोडियम आयन। सोडियम आयन का एंट्री नहीं हो पा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। कहां पे, रेस्टिंग स्टेट में। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का, रेस्टिंग स्टेट, रेस्टिंग स्टेट, ठीक। इन द रेस्टिंग स्टेट उसने क्या बोला, दैट the membrane is more permeable to potassium ion and impermeable to sodium ions। ये याद रखना, सोडियम नहीं यहाँ पर, पोटेशियम बाहर की तरफ। सिंपल, ये कौन सा है, डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक, मतलब देयर इज द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आयंस टू आउटसाइड, बट सोडियम के लिए परमेएबल नहीं है। समझ में आया? तो यही पॉइंट तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में बोल रहा है, ठीक। इन द रेस्टिंग स्टेट the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions। समझ में आया? तो all points are clear। मतलब neurons are excitable cells, okay, different types of ion channels are there। मतलब इसमें तुम्हारा सोडियम चैनल्स है, पोटेशियम चैनल्स है, सोडियम पोटेशियम पंप भी तुम्हारा होता है, and they are permeable to different types of membrane। In the resting state it is permeable to more potassium, impermeable to sodium ions। I think all doubt clear। देखो, okay। Next, similarly, the membrane is impermeable to negatively charged protein present in exoplasm। वही रेस्टिंग कंडीशन में तुम्हारा क्या है, हमने क्या पढ़ा, रेस्टिंग कंडीशन में तुम्हारा क्या होता है, that it is permeable to more amount of potassium, ठीक, impermeable to सोडियम। फिर क्या बोल रहा है, सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज impermeable to negatively charged proteins present in the exoplasm। इसका मतलब तुम्हारा क्या, ये अगर मेम्ब्रेन हो गया, ये अगर एक्सोप्लाज्म हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं which bear the negative charge, ठीक, मतलब एक्सोप्लाज्म में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर देयर which bears a negative charge, वो भी तुम्हारा इम्परमेबल है, मतलब ये बाहर की तरफ नहीं जा सकते, दे कैन नॉट गो टू द आउटसाइड। समझ में आया? सिमिलरली
द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। मतलब एक्सोप्लाज्म में तुम्हारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है एंड दोज आर आल्सो इम्परमेबल, बाहर की तरफ नहीं जा सकते। ओके तो इससे तुम्हारा क्या हुआ, इसका रीजन तुम्हारा क्या हुआ, consequently the exoplasm inside the axon contains high concentration of potassium, negatively charged proteins and low concentration of sodium। मतलब एक्सोप्लाज्म में तुम्हारा क्या हुआ, एक्सोप्लाज्म में इट contains high concentration of potassium, negatively charged proteins and low concentration of sodium। Similarly, in contrast, the fluid outside the axon contains a low concentration of potassium, high concentration of sodium and thus form a concentration gradient। बहुत सारे पॉइंट है एनसीईआरटी बुक में, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, मैं तुम्हें एक स्लाइड से एक्सप्लेन करवा रहा हूं। ठीक है, तो एक स्लाइड ले लेते हैं फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके देखो, तो अब बात ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा मेम्ब्रेन है। ठीक, ये हमारा तुम्हारा क्या है, एक्सन का मेम्ब्रेन, एक्सोलेमा, एक्सन का मेम्ब्रेन। ठीक, इधर भी हम एक ही साइड समझाने के लिए ले रहे हैं, एक्सोनल मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये अब रेस्टिंग कंडीशन में है। ओके, रेस्टिंग कंडीशन में बच्चों तुम्हारा क्या होता है, एक यहां पे हमारा पंप रहता है, एक पंप, देयर इज ए पंप, एक पंप है। इस पंप को क्या बोलता है, इट इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप। इट इज ए सोडियम पोटेशियम पंप। इसका काम क्या है, ये तुम्हारा 3 सोडियम बाहर की तरफ निकलता है और 2 पोटेशियम वो अंदर ले आता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक, सो विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, ये एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, इट इज एक्टिव प्रोसेस, यहाँ पे हमको एटीपी लगता है, वी नीड द एटीपी, it becomes ADP। It is active process, it pumps 3 sodium to outside, 2 potassium inside। समझ में आया? ओके, तो ये हो गया एक्सोनल मेम्ब्रेन, ये तुम्हारा हो गया एक्सोनल मेम्ब्रेन। ओके, तो इससे क्या हुआ बताओ, इससे क्या हमको पता चला, ये पंप तुम्हारा रेस्टिंग में, ये रेस्टिंग कंडीशन में है, ये रेस्टिंग कंडीशन है। इसका मतलब एक्सन के आउटसाइड में, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, आउटसाइड द एक्सन। ठीक, एक्सन के आउटसाइड में, ये एक्सन तुम्हारा है, तो 3 सोडियम बाहर फेंक रहा है। इसका मतलब आउटसाइड द एक्सन वी हैव द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। समझ में आया? द पंप इज एक्सपेलिंग 3 सोडियम टू आउटसाइड, तो आउटसाइड में तुम्हारा क्या है, वी हैव द हाई अमाउंट ऑफ सोडियम। इट इज पंपिंग पोटेशियम टू इनसाइड, तो इनसाइड में हमारा क्या है, वी हैव द हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम। ओके, पोटेशियम तुम्हारा बाहर की तरफ है, लेकिन पोटेशियम तुम्हारा यहाँ पे लो होगा। यू सी एवरी आयन प्रेजेंट एवरीवेयर, सोडियम पोटेशियम एक्सन के अंदर भी, एक्सन के बाहर भी है। ठीक, लेकिन ये पंप तुम्हारा 3 सोडियम बाहर फेंक रहा है, तो तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे, we have the 3 सोडियम, more sodium but less potassium। Similarly अंदर की तरफ हमारे पास क्या है, we have the less amount of sodium, we have the less amount of sodium। यहाँ पे less sodium। समझ में आया? ये कंडीशन है। देखो, मतलब एक्सन के बाहर साइड हाई सोडियम लेस पोटेशियम, अंदर साइड हाई पोटेशियम लेस सोडियम। ओके, प्लस और तुम्हारा क्या हमने पढ़ा, सो इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ, बाहर की तरफ ये तुम्हारा ज्यादा सोडियम फेंक रहा है और पोटेशियम तुम्हारा लेस अंदर की तरफ ला रहा है। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ थोड़ा तुम्हारा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा जा रहा है। ठीक, लेकिन अंदर की तरफ तुम्हारा क्या, लेस पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज हो गया ये पंप की वजह से। ठीक, और भी तुम्हारा क्या हो, रेस्टिंग कंडीशन में बाहर की तरफ पोटेशियम तुम्हारा डिफ्यूजन हो रहा है,
लेकिन सोडियम नहीं आ रहा है, तो बाहर फिर से ज्यादा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर एनसीईआरटी बुक क्या बोला, अंदर में तुम्हारा क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर देयर, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर देयर, प्रोटीन्स विद नेगेटिव चार्ज, जो बाहर की तरफ नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब ओवरऑल बच्चा लोग क्या हुआ, तो ओवरऑल ऑल द इफेक्ट, मतलब ड्यू टू द एक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, 3 सोडियम बाहर, मतलब बाहर में तुम्हारा 3 पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, अंदर में तुम्हारा 2 पॉजिटिव ला रहा है, मतलब थोड़ा सा लेस पॉजिटिव है, नेगेटिव। अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव तुम्हारा प्रोटीन्स है, प्लस पोटेशियम बाहर की तरफ डिफ्यूजन हो रहा है, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट तुम्हारा क्या हुआ, ओवरऑल इफेक्ट तुम्हारा क्या हुआ ना, बाहर पॉजिटिव एंड अंदर में नेगेटिव। तो ये सब पॉइंट्स है एनसीईआरटी बुक में, समझ में आया। दिस इज द ओवरऑल केस, इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट, एक्साइटेबल सेल्स। तो कुछ डाउट हो तो पूछ लो यहाँ पे, एनी डाउट यू कैन कमेंट, आई विल एक्सप्लेन। अगर कुछ डाउट है तो कीवर्ड्स में पूछो, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब रेस्टिंग स्टेट में तुम्हारा क्या हो रहा है, ओके, रेस्टिंग स्टेट में तुम्हारा दीज आर द इवेंट्स, ठीक। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। देखो वही पॉइंट अगेन तुम्हारा बुक में तुम्हारा है, दिस आयोनिक ग्रेडियंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। आयोनिक ग्रेडियंट मतलब तुम्हारा क्या, आयन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, आयोनिक ग्रेडियंट तुम्हारा है, मतलब तुम्हारा बाहर की तरफ ज्यादा सोडियम, अंदर तुम्हारा लेस सोडियम, ठीक। तुम्हारा बाहर लेस पोटेशियम, अंदर ज्यादा पोटेशियम। तो आयन का जो ग्रेडियंट, इस आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप। मैं बोल रहा था एक सोडियम पोटेशियम पंप तुम्हारा होता है, which transport 3 sodium outwards for 2 potassium into the cell। ये जो आयनिक ग्रेडियंट तुम्हारा होता है उसका मेन कॉज तुम्हारा वही है। व्हाट इज द मेन कॉज, दिस सोडियम पोटेशियम पंप उसका मेन कॉज है। मतलब बाहर तुम्हारा 3 सोडियम दे रहा है, अंदर 2 पोटेशियम ला रहा है, तो आयनिक डिस्टर्बेंस ही तुम्हारा क्रिएट कर रहा है, समझ में आया। तो ये उसका कॉज है, ओके। एज ए रिजल्ट, उससे तुम्हारा क्या हुआ, एज ए रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन possesses a positive charge while its inner surface becomes negatively charged and therefore it is polarized। जो हमने बोला, मतलब देखो इस पंप की वजह से तुम्हारा क्या हो रहा है, आउटर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा हो जा रहा है, अंदर में तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, आउटर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, मतलब मेम्ब्रेन becomes polarized, it bears charge, it is not a neutral surface, it bears charge। and what is the amount of that charge, we can measure the potential difference। मैं तो बोल रहा था that is approximately -70 millivolt, that is called resting membrane potential, resting membrane potential that is called। समझ में आया, ओके। तो उसका हमने बोला the electrical potential difference across the resting membrane is called रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका हमने क्या बोला, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मैं बोल रहा था इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका जो वैल्यू तुम्हारा हो गया, याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, -70 मिलीवोल्ट, अप्रोक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट। तो ये तुम्हारा हो गया रेस्टिंग टेस्ट में। अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं प्रोसीड करूंगा। मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल तुम्हारा क्या होता है, व्हाट इज पोलराइज्ड स्टेट, उसका कॉज क्या है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। ठीक, तुम जाते नेक्स्ट क्लास की नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ओके। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, when, समझ में आ गया, ओके। when a stimulus is applied at a point A,
सपोज ये तुम्हारा एक्सन का मेम्ब्रेन है, ये एक्सन का मेम्ब्रेन है, ये तुम्हारा रेस्टिंग कंडीशन में था, ये तुम्हारा क्या था यहाँ पे, सपोज ये तुम्हारा एक्सन का मेम्ब्रेन है, ठीक, रेस्टिंग में तुम्हारा था, रेस्टिंग में तुम्हारा था, ये तुम्हारा रेस्टिंग कंडीशन में तुम्हारा था, मतलब बाहर में तुम्हारा पॉजिटिव था चार्ज, अंदर में नेगेटिव था। एक पॉइंट लिया जाए, पॉइंट ए लिया जाए, पॉइंट ए लिया जाए एनसीईआरटी के हिसाब से, व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड एट साइट ए, मतलब यहां पे एक स्टिमुलस को अप्लाई किया गया। स्टिमुलस तुम्हारा क्या होता है, एनी काइंड ऑफ सेंसेशन, यहां पे आया स्टिमुलस, स्टिमुलस ये कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एनी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, ठीक, इट मे बी एनी मैकेनिकल, केमिकल, कुछ भी हो सकता है, एनी स्टिमुलस, ठीक। अगर स्टिमुलस को हम साइट ए में अप्लाई किया, यहां पे स्टिमुलस को अप्लाई किया गया इन द साइट ए में, तो क्या होगा, ओके, व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड एट साइट ए ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, ये पोलराइज था, इट वाज पोलराइज, तो क्या होगा, एट द साइट ए बिकम्स फ्रीली परमेएबल टू सोडियम आयन, यही मेन पॉइंट है। अगर एक मेम्ब्रेन के साइड में कोई स्टिमुलस अप्लाई होता है, देखो मेरे को पहले मैं क्या बोला था, रेस्टिंग स्टेट में इनिशियली तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा पोटेशियम को होता है परमेएबल, पोटेशियम को परमेएबल है, लेकिन तुम्हारा क्या, सोडियम को परमेएबल तुम्हारा नहीं था, हमने प्रीवियस में डिस्कस किया। द मेम्ब्रेन इनिशियली इन द रेस्टिंग स्टेट इट इज परमेएबल टू पोटेशियम बट इम्परमेएबल टू सोडियम, बट जब यहाँ पे स्टिमुलस का आया, एक स्टिमुलस यहाँ पे आया, तो नाउ द मेम्ब्रेन बिकम परमेएबल टू सोडियम आयंस, ठीक, सोडियम चैनल सब ओपन हो जाता है, एंड अब तुम्हारा क्या होगा, सोडियम अंदर जाएगा। सो एट दिस पॉइंट ए व्हाट हैपेन, ए बिकम्स फ्रीली परमेएबल टू सोडियम आयन, समझ में आया? सो इससे क्या होगा, दिस लीड्स टू ए रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, इन्फ्लक्स मतलब अंदर जाना, followed by the reversal of polarity at the site A। अब यहां पे तुम्हारा क्या हुआ, सोडियम अंदर चले आए, अब यहां पे तुम्हारा क्या हुआ, सोडियम अंदर तुम्हारा चले आए। देखो इनिशियली इट वाज द कंडीशन, इट वाज इम्परमेबल सोडियम आयन, जब सोडियम आयन हमारा अंदर चले आता है तो चार्ज रिवर्स हो जाएगा, मतलब अंदर हो जाएगा ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, बाहर हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, ठीक, ओके। You lead to the rapid influx of sodium followed by the reversal of polarity at the site. The outer surface of the membrane becomes negatively charged and the inner side becomes positively charged because sodium चले रिवर्स हो गया polarity, अब समझ में आया? देखो मतलब पार्ट ए में अभी तुम्हारा क्या हो रहा है इस डायग्राम में, तो ये जो डायग्राम तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का थोड़ा देख लेना, ठीक। इससे क्वेश्चन आएगा, क्या पूछेगा, ए पॉइंट में क्या हो रहा है, क्वेश्चन तुम्हारा क्या आएगा, ए पॉइंट में क्या हो रहा है, व्हाट इज द इवेंट इन द पॉइंट ए, तो ए पॉइंट में क्या है, ए पॉइंट में एक स्टिमुलस अप्लाइड हुआ है, उससे तुम्हारा क्या हो जा रहा है, वहां पे सोडियम गेट ओपन हो रहा है, तो सोडियम आयन का भी हो रहा है, चार्ज रिवर्स हो रहा है, मतलब अंदर की तरफ पॉजिटिव हो रहा है, बाहर की तरफ नेगेटिव हो रहा है, पोलैरिटी उसका रिवर्स हो रहा है, समझ में आया? तो ये तुम्हारा बात है, तो ये समझ में आ गया। तो उससे होगा क्या, उससे होगा क्या, ओके, द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट इज रिवर्स्ड and thus hence it is depolarized, depolarized, जब तुम्हारा depolarized हो गया, देखो तुम एक मैं स्लाइड ले रहा हूं तो समझाने के लिए, फॉर मोर क्लियर इसके लिए, तो फॉर क्लियर कट एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक, ये तुम्हारा बच्चा लोग रेस्टिंग कंडीशन में तुम्हारा था, ठीक, मतलब बाहर पॉजिटिव था, अंदर था नेगेटिव, तुम्हारा था रेस्टिंग
स्टेट, ठीक, रेस्टिंग स्टेट। तो ये रेस्टिंग स्टेट था, ठीक। मैं इसको डिवाइड कर दे रहा दो पार्ट्स में, ठीक। ये तुम्हारा पार्ट ए है, ये तुम्हारा पार्ट बी ले लिया। सपोज ये तुम्हारा एक्साम का सरफेस है, ठीक। तो ये रेस्टिंग स्टेट में बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। सपोज तुम्हारा क्या हुआ, ये जो पार्ट ए में हमारा एक स्टिमुलस आया, एक सिग्नल आया, यहाँ पे कुछ सिग्नल आया यहाँ पे पार्ट ए में। तो इससे तुम्हारा होगा क्या, उसमें क्या होगा, इस एरिया में कुछ चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स, वो ओपन हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे सोडियम चैनल तुम्हारा ओपन हो जाएगा। इनिशियली ये तो है यहाँ पे, बट ये तुम्हारा क्लोज रहता है। इनिशियली यहाँ पे हर चैनल से मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल पोटेशियम, बट दे आर क्लोज्ड। कैन यू से व्हाई, व्हाट इज द रीजन व्हाई इन द रेस्टिंग स्टेट सोडियम चैनल्स आर क्लोज्ड? पॉइंट है, यहाँ पे पोटेशियम चैनल भी है, सोडियम चैनल, सब चैनल यहाँ पे है, लेकिन सब क्लोज है। उसका रीजन क्या है? रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, द मेम्ब्रेन्स हैव ऑल काइंड ऑफ चैनल्स, सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, सोडियम पोटेशियम पंप, बट इन द रेस्टिंग स्टेट तुम्हारा ओनली पंप काम करते रहता है, बाकी सब बंद रहते हैं, सोडियम बंद रहता है, पोटेशियम बंद रहता है। उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? इन द रेस्टिंग स्टेट में तुम्हारा क्या होता है, उसके साथ कैल्शियम बाइंड करके रहता है। रेस्टिंग स्टेट में तुम्हारा क्या होता है, चैनल सब है, लेकिन वहां पे तुम्हारा क्या होता है, उसमें कैल्शियम तुम्हारा बाइंड करके रहता है, कैल्शियम आयन। एंड ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम आयन वो चैनल सब तुम्हारे क्लोज रहते हैं, ठीक। बट जब यहाँ पे स्टिमुलस अप्लाई होता है तो यहाँ पे कैल्शियम का इफेक्ट कम जाता है, एंड नाउ द सोडियम चैनल बिकम ओपन्स। तो अभी तो जब तुम्हारा सोडियम चैनल तुम्हारा है, ये तुम्हारा ओपन हो जाएगा, सोडियम चैनल। इसका मतलब तुम्हारा क्या, द मेम्ब्रेन बिकम्स मोर परमेबल टू सोडियम आयंस। देखो इनिशियली यहाँ पे सोडियम अंदर नहीं आ पा रहा था, ठीक, बट जब एक स्टिमुलस यहाँ पे आया, स्टिमुलस यहाँ पे आया, इट बिकम्स परमेबल। इसका क्या रीजन है बता मेरे को? Why the gate opens? Initially सोडियम गेट क्लोज था कैल्शियम की वजह से, बट स्टिमुलस आया, इसका जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इसका चेंज हो गया, मतलब सोडियम अभी अंदर आ रहा है, तो गेट क्यों खुल गया? Why the gate open actually? Anyone reply? Why the sodium gates open? These are the voltage gated channels. They require some kind of electric potential to open. जब तक वो पोटेंशियल यहाँ पे नहीं होगा, ये तुम्हारा खुलेगा नहीं। समझ में आया? रेस्टिंग में तुम्हारा होता है -70 मिलीवोल्ट, ठीक, एंड ड्यू टू दैट रेस्टिंग पोटेंशियल ये गेट नहीं खुल सकता। इसको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए, जब एक थ्रेशोल्ड तभी ये गेट खुलेगा। तो समटाइम्स यू मे फाइंड क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल टू ओपन द सोडियम गेट? रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। जब एक स्टिमुलस आता है, एक मिनिमम पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ड्यू टू दैट पोटेंशियल ये सोडियम गेट तुम्हारा ओपन हो जाता है। तो व्हाट इज दैट पोटेंशियल? उसको हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पे एक पोटेंशियल तुम्हारा क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ड्यू टू द स्टिमुलस यहाँ पे एक पोटेंशियल तुम्हारा क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अरे ये तो तुम्हारा लोपिता, ये तो एक्शन पोटेंशियल, ठीक, उसके वजह से इंपल्स तुम्हारा फ्लो होगा। अभी तक वो स्टेप में हम नहीं आए हैं। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक स्टिमुलस आया ए में और सोडियम चैनल ओपन हो रहा है तुम्हारा, ठीक। इसका वैल्यू बेटा तुम्हारा होता है कितना, लगभग तुम्हारा -60 मिलीवोल्ट, ठीक, ये याद रखना। इसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलते हैं, मतलब इट इज द मिनिमम पोटेंशियल टू ओपन द सोडियम गेट, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। समझ में आया? पहले -70 था, जब एक स्टिमुलस आ गया इट बिकम्स -60, ठीक, ओके। तो अब गेट तुम्हारा ओपन हो गया, ठीक। अब तुम्हारा क्या होगा, देयर इज द रैपिड एंट्री ऑफ सोडियम आयंस, ठीक। अब सोडियम आयन तुम्हारा अंदर की तरफ आएंगे, समझ में आएंगे नहीं आएंगे?
तो ग्रेजुअली ये पोटेंशियल बढ़ेगा तुम्हारा। ओके, पहले तुम्हारा क्या था, पहले तुम्हारा -60, पहले तुम्हारा क्या था, पहले -70 मिली वोल्ट तुम्हारा था, ठीक। जब स्टिमुलस की वजह से कितना हो गया, ये -60 मिली वोल्ट तुम्हारा हो गया। ये था तुम्हारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब एक स्टिमुलस आया इट बिकम्स -60 मिली वोल्ट, इससे सोडियम गेट खुल गया। तो नाउ अल्टीमेटली ड्यू टू द एंट्री ऑफ सोडियम, चार्ज अब कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 0 मिली वोल्ट, पहले हो जाएगा 0 मिली, पॉजिटिव की तरफ ये जा रहा है तुम्हारा ड्यू टू द एंट्री ऑफ सोडियम आयंस, ठीक। तो अंदर की तरफ मोर पॉजिटिव तुम्हारा, अंदर में तुम्हारा नेगेटिव चार्ज तुम्हारा था, पहले -70 था, फिर -60 मिली वोल्ट आया, अब 0 मिली वोल्ट। जब 0 आ जाएगा इसको हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड पोटेंशियल, डीपोलराइज्ड, मतलब ये पोलराइज्ड था -70 मिली वोल्ट में, ये तुम्हारा पोलराइज्ड था, पोलराइज्ड। अब डीपोलराइज्ड मतलब अब न्यूट्रल, 0 हो गया पोटेंशियल, 0 मतलब ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम आयन अब पोटेंशियल तुम्हारा अंदर में 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन फिर सोडियम का मूवमेंट होगा, फिर सोडियम का मूवमेंट चलता रहेगा, तो अब ये तुम्हारे पॉजिटिव की तरफ तुम्हारा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा पॉजिटिव तुम्हारा हो जाएगा, तो अब अंदर में पोटेंशियल तुम्हारा कितना हो जाएगा, लगभग तुम्हारा 32 प्लस 45 मिली वोल्ट, ठीक। सो इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। पहले -70 था, फिर -60 आया, अब कैंसिल होगा ना, अंदर में तुम्हारा नेगेटिव था, अब कैंसिल हो जाएगा पॉजिटिव की वजह से, तुम्हारा ये 0 हो जाएगा। फिर जब सोडियम आयन तुम्हारा आएगा अगेन पोटेंशियल तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक। मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, अंदर में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, और बाहर में तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, अल्टीमेटली अंदर में पॉजिटिव। तो इसका वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया, +35 टू +45 मिली वोल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा लोग, इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। समझ में आया? दैट मींस अब पार्ट ए में हमारा क्या हो गया, वी हैव द एक्शन पोटेंशियल। लेकिन पार्ट बी में ऐसा हो रहा है क्या, पार्ट बी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पार्ट बी में कुछ ऐसा, पार्ट बी रेस्टिंग, बिकॉज स्टिमुलस तुम्हारा पार्ट ए में तुम्हारा आया, तो पार्ट बी पूरा रेस्टिंग है। मतलब तुम्हारा क्या होगा देखो, इसका मतलब पार्ट बी में तुम्हारा अंदर में क्या होगा, नेगेटिव तुम्हारा होगा, और बाहर में तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब पार्ट बी तुम्हारा रेस्टिंग कंडीशन में है, पार्ट ए तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल है। मतलब तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा हो गया हाई पोटेंशियल, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, हाई पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। एक पोटेंशियल ग्रेडियंट तुम्हारा क्रिएट हो गया, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तुमको पता है फिजिक्स के हिसाब से जब पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तब ए से बी की तरफ तुम्हारा एक करंट फ्लो होगा, करंट, इसको भी हम बोलते हैं नर्व इंपल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड नर्व इंपल्स, इट इज ड्यू टू दिस एक्शन पोटेंशियल, ठीक। मतलब इस एरिया में पोटेंशियल तुम्हारा कितना है, मतलब ए में पोटेंशियल हमारा है लगभग सपोज 45 मिली वोल्ट है, लेकिन तुम्हारा बी में तुम्हारा कितना है, -70 तुम्हारा है, तो हाई से लो पोटेंशियल तुम्हारा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो अब तुम्हारा इंपल्स यहाँ पे जंप करेगा करंट की तरह, तो इसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स और नर्व सिग्नल, इसको हम बोलते हैं। समझ में आया? लेकिन तुम्हारा देखो याद रखना, इंपल्स तुम्हारा हर वक्त तुम्हारा अंदर की तरफ तुम्हारा फ्लो होते जाता है, यहाँ पे फ्लो होगा, लेकिन बाहर में तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे तुम्हारा लो पोटेंशियल है, तो बाहर में तुम्हारा करंट इधर से ऐसा फ्लो होगा टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है बच्चा लोग, इलेक्ट्रिकल सर्किट, समझ में आया? इलेक्ट्रिकल सर्किट, अंदर में अगर यहां से पोटेंशियल जा रहा तो बाउट में यहां पे होगा, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंपल्स, ऑलवेज यू टेक द इनर साइड फ्लो, वी विल टेक द इनर साइड फ्लो को हम लेंगे। क्लियर? तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ठीक। अब तुम्हारा क्या होगा देखो, अब तुम्हारा बी में तुम्हारा जो जो इवेंट यहाँ पे तुम्हारा हुआ था वो इवेंट तुम्हारा, हाँ बी, देखो अब जब इंपल्स तुम्हारा बी में आ गया
मतलब जो स्टिमुलस तुम्हारा आया था, स्टिमुलस सिग्नल, अब वो यहाँ पे तुम्हारा मेम्ब्रेन में फ्लो हो रहा है। अब ये जहां जहां जाएगा इसको रिपीट करेगा। अब तुम्हारा क्या होगा ना, तुम्हारा बी में अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, सोडियम गेट खुल जाएगा बी में। अब बी में तुम्हारा सोडियम का तुम्हारा एंट्री होगा, अगेन बी में तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। उसका नेक्स्ट पार्ट जो सी तुम्हारा होगा वो रेस्ट में होगा, तो अब तुम्हारा बी से सी की तरफ तुम्हारा फ्लो होगा। तो लाइक दिस इंपल्स तुम्हारा इनर में कंटिन्यू तुम्हारा फ्लो होते जाता है। यस, राम राम बेटा, जय हिंद सबको। ओके, समझ में आया? तो जो जो इवेंट तुम्हारा ए में हो रहा था, द सेम विल बी रिपीटेड इन द बी ऑल्सो। मतलब बी में तुम्हारा खुल जाएगा सोडियम गेट, सोडियम आयन का एंट्री होगा, तो बी में वही सब होगा। फिर उसका सी वाला तुम्हारा रेस्ट में तुम्हारा होगा। तो लाइक दिस इंपल्स तुम्हारा ऐसा फ्लो होते जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह तुम्हारा क्या होगा, जैसे कि हमने देखा। तो अभी तुम्हारा क्या हुआ देखो, अभी हमने क्या लिया, सपोज ये तुम्हारा इंपल्स हमने लिया, ठीक। सपोज ये ए था, ठीक। अब जो तुम्हारा सिग्नल था तुम्हारा क्या हुआ, वो ए से तुम्हारा बी की तरफ आ गया, बी की तरफ आ गया। जो स्टिमुलस तुम्हारा यहां पे आया था, स्टिमुलस जो तुम्हारा आया था ए में, वो बी में आ गया। तो अब तुम्हारा क्या होगा, सेम इवेंट। सपोज यहाँ पे और एक पॉइंट में सी ले लेता हूं, यहाँ पे एक सी ले लेता हूं, सी पार्ट ले इंपल्स का, नर्व का मेम्ब्रेन, ठीक। तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा सोडियम आयन का एंट्री होगा, तो बाहर यहाँ पे अब पॉजिटिव हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बाहर नेगेटिव है। लेकिन सी वाला पार्ट रेस्ट में है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो अब इंपल्स तुम्हारा बी से सी को जंप करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आई थिंक तुम भी फाइन हो गए बच्चा लोग। सो ऑल फाइन, समझ में आया? सो अब तुम्हारा जो हमने सीक्वेंस का इवेंट पढ़ा, वो सब बच्चा रिपीट होते जा रहा है जहां जहां जाएगा। इसका मतलब वो तुम्हारा कंटिन्यूअसली, इसका मतलब तुम्हारा क्या, कंटिन्यूअसली तुम्हारा, ये अगर मेम्ब्रेन तुम्हारा है, एक्सोलेमा तुम्हारा है, उसके इनर साइड में तुम्हारा इंपल्स तुम्हारा क्या ऐसा फ्लो होते जाएगा, ठीक। समझ में आया? अगर एनी डाउट तो पूछ सकते हो, कुछ डाउट है तो। एनी डाउट? ओके। सपोज हम अब देखेंगे तुम्हारा क्या, इंपल्स तो तुम्हारा चले गया, इंपल्स जाने के बाद ए में अब तुम्हारा क्या हो रहा है, ए में तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो। अभी ए में तुम्हारा क्या था, एक्शन पोटेंशियल तुम्हारा था, ओके, मतलब लगभग तुम्हारा प्लस 45 मिलीवोल्ट था। तो इन दैट पोटेंशियल इट कैन नॉट रिसीव अनदर इंपल्स, बिकॉज इंपल्स एक के बाद एक फ्लो होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल तुम्हारा एक ही इंपल्स यहाँ पे होगा, यहाँ पे और एक स्टिमुलस तुम्हारा आएगा, तो इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन यहाँ पे तुम्हारा और एक स्टिमुलस तुम्हारा आएगा यहाँ पे। लेकिन जब तक ये तुम्हारा अगेन रिपोलराइज नहीं होगा, ये उसको कैरी नहीं कर पाएगा। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट बिकम्स रिपोलराइज्ड। ये तुम्हारा डीपोलराइज तुम्हारा हो गया था, एक्शन पोटेंशियल हो गया था ये पे तुम्हारा, ड्यू टू एंट्री ऑफ सोडियम आयन। पीछे और एक स्टिमुलस तुम्हारा आ रहा है फ्लो होने के लिए, बिकॉज स्टिमुलस तुम्हारा क्या कॉन्स्टेंटली ट्रिगर करते हैं एक एरिया में, तब वो फ्लो होते हैं तुम्हारा। सो रिसीव द अनदर स्टिमुलस, क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे अब तुम्हारा क्या होगा, पोटेशियम गेट तुम्हारा खुल जाएगा, ठीक। इसको अगेन तुम्हारा क्या करना है, रिपोलराइज करना है इसको, इस पार्ट को अगेन रिपोलराइज करना है, ठीक। तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, देयर इज द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। अब सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, यहाँ का सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल तुम्हारा खुल जाएगा, ये याद रखना, पोटेशियम चैनल, पोटेशियम चैनल। इसका मतलब तुम्हारा क्या, अब जितना भी पोटेशियम है, अब पोटेशियम तुम्हारा बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक। तो फॉर ओनली 0. वेरी माइन्यूट सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तुम्हारा, ठीक। अब तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हारा खुल जाएगा, तो अब तुम्हारा क्या हो, जितना भी पॉजिटिव चार्ज था तो बाहर की तरफ चले जाएगा तुम्हारा। अगेन ड्यू टू दिस व्हाट मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन, अगेन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाहर में तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, तुम्हारा अंदर में नेगेटिव हो जाएगा। ये और एक बार तुम्हारा हो जाएगा कितना, -70 मिलीवोल्ट, मतलब अगेन ये रेस्ट में आ जाएगा।
तो अगेन ये तुम्हारा क्या करेगा, और एक इंपल्स तुम कैरी करेगा, मतलब अगेन इंपल्स आया, अगेन यहाँ पे सोडियम गेट खुलेगा। तो लाइक दिस द प्रोसेस तुम्हारा कैरी होते रहता है। इसका मतलब जब एक स्टिमुलस तुम्हारा आता है तो सोडियम गेट खुलता है, जब स्टिमुलस तुम्हारा पास के चले जाता है उसमें तुम्हारा पोटेशियम गेट खुलता है। एक सोडियम तुम्हारा अंदर की तरफ जाता है, पोटेशियम तुम्हारा बाहर की तरफ जाता है। तो अगेन तो कुछ सेकंड के लिए गेट तुम्हारा खुलेगा, ठीक, अगेन गेट तुम्हारा फिर क्लोज हो जाएगा। अगेन तुम्हारा ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया, मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव हो गया। द मेम्ब्रेन अगेन पोलराइज, रिपोलराइज, नाउ अगेन इट कैन रिसीव अनदर स्टिमुलस। तो ये प्रोसेस तुम्हारा कंटिन्यू होते रहता है, ठीक। तो तुम क्या याद रखना बच्चों इसमें, एक इंपल्स फ्लो किसके वजह से होता है, द इंपल्स फ्लोज ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, सोडियम गेट, ठीक। बट अगेन वो रिपोलराइज तुम्हारा होता है ड्यू टू द एंट्री ऑफ व्हाट, सॉरी, ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, पोटेशियम बाहर की तरफ जाता है। समझ में आया? तो यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है इसका। तो यही तुम्हारा पॉइंट्स हम जो पॉइंट मैंने बोला है वही सब पॉइंट है बुक में, ठीक। At the side immediately ahead, the axon side B membrane has a positive charge on the outer surface, negative charge on the inner surface। मतलब ये तुम्हारा A एरिया है। अगर थोड़ा एनसीईआरटी बुक का डायग्राम हम देखेंगे जो मैंने डिस्कस किया, ये तुम्हारा A था, ठीक। तो ये नजदीक में तुम्हारा ये तुम्हारा B पार्ट सपोज है, B पार्ट। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव था लेकिन B तुम्हारा रेस्टिंग में तुम्हारा है। देखो यहाँ पे A तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा स्टिमुलस ट्रिगर करके आया, ठीक। तो अब यहाँ पे अंदर में तुम्हारा हो गया पॉजिटिव, बाहर में तुम्हारा नेगेटिव है। और थोड़ा जूम कर दिया जाए इसको, तुमको थोड़ा एनसीईआरटी का डायग्राम अच्छे से देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो अब तुम्हारा क्या हुआ, देखो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव तुम्हारा नेगेटिव है, तो इंपल्स तुम्हारा यहाँ से फ्लो हो गया, ठीक। तो इंपल्स तुम्हारा यहाँ से फ्लो हो रहा है दोनों सरफेस में, इधर भी इधर भी, ठीक। As a result, a current flows on the inner surface from side A to B, ठीक है। A to B में तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट तुम्हारा फ्लो हो रहा है। इट इज ए करंट, इसको करंट बोला गया है। सिग्नल को तुम्हारा बोला गया है इलेक्ट्रिकल करंट। देयर आर एनी, ओम प्रकाश ने पूछा है सर, आर देयर एनी रोल ऑफ कैल्शियम आयंस अगेन हियर। हाँ, जब एक इंपल्स तुम्हारा पास हो जाता है, सपोज जैसे कि तुम्हारा सपोज तुम्हारा क्या हो रहा है, इंपल्स पास हो गया, ठीक। यहां से इंपल्स हमारा पास हो गया, तो ये गेट को तो फिर बंद करना रहता है कि नहीं, सोडियम गेट। तो कैल्शियम है उसको बंद कर देगा। जब एक इंपल्स यहां से क्रॉस कर गया, जब टाइम आ जाएगा पोटेशियम गेट को ओपनिंग के लिए, तो सोडियम गेट को यहाँ पे कैल्शियम बाइंड होगा एंड दैट कैल्शियम विल क्लोज द सोडियम गेट, ठीक। तो कैल्शियम विल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द दिस चैनल्स, ओके। ओके, हाँ, ये भी पॉइंट थोड़ा याद रख लेना, इसको स्किप मत करना। On the outer surface, current flows from site B to site A to complete the circuit of current flow। मैं बोल रहा था अंदर में यहाँ पे फ्लो हो रहा है, लेकिन बाहर में तुम्हारा क्या हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है, लाइक दिस। मतलब बाहर में तुम्हारा B में हाई चार्ज है, A में लो चार्ज है, तो बाहर की तरफ ऐसा फ्लो होगा, अंदर की तरफ ऐसा फ्लो होगा, ठीक। टू कंप्लीट द circuit of current flow, hence the polarity at the site is reversed and an action potential is generated site B। उसके बाद अगेन यहाँ पे फिर वैसा हो जाएगा जो हुआ था यहाँ पे। जब एक इंपल्स यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर सोडियम गेट खुल जाएगा, यहाँ पे फिर चार्ज उसका रिवर्स हो जाएगा, रिपीटेड हो जाएगा। Thus, impulse generated at site A arrives at B, अब वो तुम्हारा B में आ जाएगा।
The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. समझ में आया? जो इवेंट तुम्हारा हो रहा है ये रिपीट होते जाएगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एक्शन, रिपीटेड, ठीक? द सीक्वेंस ऑफ इज रिपीटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसली द इंपल्स इज कंडक्टेड. सो कुछ डाउट है तो तुम पूछ सकते हो. ये भी देखो, यू शुड नॉट लीव एनी पॉइंट ऑफ द एनसीईआरटी बुक. और वो क्या बोला एनसीईआरटी बुक? The rise in stimulus induced permeability is sodium extremely shortly. इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ? इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ? देखो, जो सोडियम गेट तुम्हारा खुल रहा है, ठीक? समझा रहा हूं. ये तुम्हारा मेम्ब्रेन है, ठीक? ये तुम्हारा सोडियम गेट तुम्हारा था, ओके. इट वाज क्लोज ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन. जब यहाँ पे स्टिमुलस तुम्हारा आता है तो ये गेट तुम्हारा खुलता है, सोडियम तुम्हारा अंदर की तरफ आता है. लेकिन द गेट ओपन्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 0.5 मिली सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, कुछ मिली सेकेंड के लिए गेट तुम्हारा क्या होता है? खुलता है. एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, याद रखना. ये जो गेट तुम्हारा खुलता है नॉट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सब कुछ तुम्हारा हो जाता है, ठीक? It is quickly followed by rise in permeability for the potassium ions, very very important. इसके बाद तुम्हारा क्या होगा? यहाँ पे पोटेशियम गेट खुल जाएगा. इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे क्या एक गेट बंद हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? There is the opening of potassium gate. There is the opening of potassium gate. मतलब पोटेशियम तुम्हारा बाहर जाएगा. इन दोनों के बीच फ्रैक्शन बहुत तुम्हारा गैप बहुत जीरो है, बहुत लेस पीरियड ऑफ टाइम में द गेट्स ओपन एंड क्लोज. ये सोडियम, ये तुम्हारा पोटेशियम. सो इसमें बोला गया तुम्हारा क्या? इट इज क्विकली फॉलोड बाय ए राइज इन परमेबिलिटी टू पोटेशियम आयन. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मैं बोल रहा था, पोटेशियम डिफ्यूजेड आउटसाइड, पोटेशियम बाहर की तरफ जा रहा है द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर्स द रेस्टिंग पोटेंशियल. मतलब अगेन तुम्हारा अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया था? यहाँ पे तुम्हारा हो गया था तुम्हारा लगभग 45 मिलीवोल्ट हो गया था. जब पोटेशियम तुम्हारा बाहर की तरफ चले आएगा अगेन यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल बिकम -70 मिलीवोल्ट. इट रिस्टोर द नॉर्मल पोटेंशियल. नॉर्मल मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल. सो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड potassium diffused outside the membrane and restores the resting potential of the membrane at the site of excitation, and fiber becomes once more responsive to the further stimulation. मतलब again it will receive the stimulus. ठीक? एक stimulus आया, ये +45 मिलीवोल्ट हो गया. जब stimulus क्रॉस कर गया, पोटेशियम गेट खुल गया, पोटेशियम बाहर चले गया, again it becomes -70 मिलीवोल्ट. So that again it receive another stimulus. जब तक ये तुम्हारा -70 मिलीवोल्ट नहीं होगा, it will not receive many stimulus further again. तो मेरे को लगता है सब डाउट तुम्हारा क्लियर हो गया. तो जस्ट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो ये तुम्हारा हो गया जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स. तो जितने भी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस हमने किए तो सब एक बार देख लो, एक क्विक रीडिंग मार लो जो पॉइंट मैंने बोला स्लाइड में. उसके बाद ये तुम्हारा हो गया जनरेशन एंड कंडक्शन. उसके बाद हम तुम्हारा जाएंगे ट्रांसमिशन में तुम्हारा जाएंगे, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड. ठीक? ये तो जो मैं समझा रहा था पुलराइज्ड स्टेट. The points are very very important. Now you try to learn to revise the NCERT very quickly. तुम जितना फास्ट NCERT रिवाइज करोगे तुम्हारा नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ेगा, तुम्हारा मेमोरी बढ़ेगा, you become more confident in doing the problems. Okay? तो कुछ इधर उधर मत पढ़ो, NCERT पढ़ो. So resting potential होता है -70 मिलीवोल्ट.
these are the points जो हमने डिस्कस किया. All things are very very important. ठीक. तो ये सब ये तुम बुक में पढ़ लेना, सब समझा लिया तुमको. अब हम थोड़ा जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन तुम्हारा कैसे होता है. ठीक. देन वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन. ये तो तुम्हारा हो गया जनरेशन एंड कंडक्शन, कैसे जनरेट हुआ कंडक्ट हुआ. देन तुम्हारा हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स. ओके. ट्रांसमिशन का मतलब तुम्हारा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन. इसका मतलब तुम्हारा क्या होता है, देखो सपोज, हाँ मैं बता रहा हूं. रिफ्रैक्टिव पीरियड मतलब टाइम टेकन टू रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल. ठीक. मतलब ये तुम्हारा सपोज एक्शन पोटेंशियल हो गया है प्लस 45 मिलीवोल्ट हो गया है. ठीक. और वो अगेन रिस्टोर होगा पोलराइज पोटेंशियल के लिए. मतलब द टाइम टेकन टू रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल, देयर इज को रिफ्रैक्टिव पीरियड. और उस बीच में तुम्हारा क्या होगा, स्टिमुलस फ्लो नहीं होगा. ये तुम्हारे क्वेश्चन में आता है. रिफ्रैक्टिव पीरियड that is about I think 1 you check the value, that is about 1 millisecond शायद. 1 millisecond तुम्हारा है रिफ्रैक्टिव पीरियड. मतलब विद इन 1 millisecond में तुम्हारा अगेन एक्शन से अगेन तुम्हारा पोलराइज स्टेट में तुम्हारा आ जाएगा. ठीक. ट्रांसमिशन का मतलब तुम्हारा क्या होता है, सपोज ये तुम्हारा न्यूरॉन है, ये तुम्हारा न्यूरॉन है, ये उसका न्यूरॉन का एंडिंग है. इंपल्स तुम्हारा क्या यहां पे फ्लो क्या आ रहा है, एक इंपल्स फ्लो यहां पे आ रहा है. अब ये तुम्हारा क्या नेक्स्ट न्यूरॉन को ये कैसे ट्रांसफर होगा, ये तुम्हारा क्या नेक्स्ट न्यूरॉन को ये तुम्हारा कैसे ट्रांसफर होगा. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिशन. इंपल्स तुम्हारा सपोज ये न्यूरॉन 1 में, सपोज ये तुम्हारा हो गया न्यूरॉन 1, ये न्यूरॉन 1, ये न्यूरॉन 2. अब जो इंपल्स तुम्हारा यहाँ पे था न्यूरॉन 1 में था, वो कैसे तुम्हारा ट्रांसफर होगा न्यूरॉन 2 को, सो दैट न्यूरॉन 2 में तुम्हारा इंपल्स तुम्हारा फ्लो होगा. उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन बोलते हैं. ट्रांसमिशन मतलब यहाँ पे जनरेट हुआ, कंडक्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ तुम्हारा नेक्स्ट न्यूरॉन को. ठीक है. और तुम्हारा कैसे ट्रांसफर होता है, थ्रू सिनाप्स. ये जंक्शन को हम बोलते हैं सिनाप्स बोलते हैं. इंपल्स ट्रांसमिटेड थ्रू सिनाप्स, इट इज कॉल्ड सिनाप्स. मतलब जंक्शन, नॉर्मली सिनाप्स मींस क्या, उसका बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, बट नॉर्मली द जंक्शन बिटवीन एक्सन टर्मिनल, ये तुम्हारा है एक्सन टर्मिनल है, द जंक्शन बिटवीन एक्सन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन, दिस जंक्शन इज कॉल्ड सिनाप्स. तो इंपल्स आर ट्रांसमिटेड वाया सिनाप्स. ठीक. ओके. अब मेरे को बताओ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिनाप्स, कितने टाइप्स के सिनाप्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिनाप्स. इफ यू डिस्कस ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिनाप्स. एक होता है हमारा केमिकल, एक होता है हमारा इलेक्ट्रिकल. ठीक है. केमिकल एंड तुम्हारा इलेक्ट्रिकल सिनाप्स. तो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट केमिकल्स. सो व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल सिनाप्स, बिकॉज यहाँ पे इंपल्स इज ट्रांसमिटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, उसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं. दो आर कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमीटर. ठीक. लाइक एसिटिलकोलिन. तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं. यस, एंड ड्यू टू दोस केमिकल्स इंपल्स आर ट्रांसमिटेड, दैट इज कॉल्ड एसिटिलकोलिन. ठीक. तो उसको हमने बोला केमिकल सिनाप्स. बट यहाँ पे क्या होता है, इंपल्स फ्लो लाइक एन इलेक्ट्रिकल करंट. यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, इंपल्स फ्लोज लाइक एन इलेक्ट्रिकल करंट.
लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट इंपल्स यहाँ पे फ्लो होता है, एंड दैट इज द रीजन दैट इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनाप्स हम बोलते हैं। और नीट में तुम्हारे क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में, नीट में यू मे गेट क्वेश्चन रिगार्डिंग केमिकल एंड द इलेक्ट्रिकल सिनाप्स। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट योर केमिकल सिनाप्स। तो पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पहले पढ़ेंगे हम, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल सिनाप्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है केमिकल सिनाप्स में, तो यू विल फाइंड वन प्री एंड पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, ये एक्सन का टर्मिनल तुम्हारा है, इसको हम बोलेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक, एक गैप होता है, दैट गैप इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक, ये तुम्हारा हो गया पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये डेंड्राइट का सरफेस हो गया। देखो ये तुम्हारा हो गया एक्सन का टर्मिनल, एक्सन टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सिनेप्टिक नोब। ये राउंड जैसा तुम्हारा है इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। ठीक, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन तुम्हारा है इसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक, इसको हम तुम्हारा बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट, इसको हम बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। एंड इन बिटवीन यू फाइंड सम गैप, यानी गैप नहीं होता इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। दिस इज द मेजर डिफरेंस, द मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्स इज दैट इन केमिकल सिनेप्स यू विल फाइंड ए गैप, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, द गैप इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये गैप तुम्हारा नहीं होता इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में, समझ में आया, द गैप इज एब्सेंट इन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ठीक, ओके, तुमको पता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं कॉन्टेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक, दीज आर द वेसिकल्स, इनको हम बोलते हैं तुम्हारा क्या, दीज आर कॉल्ड सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स, एंड दे कंटेन्स व्हाट, न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, you will find the neurotransmitters, neurotransmitters like तुम्हारा एसिटिलकोलिन, डोपामाइन, बहुत सारे हो सकते, सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गाबा, बहुत सारे, बट द मोस्ट कॉमनली इज आवर एसिटिलकोलिन, उसका हम फंक्शन पढ़ेंगे यहाँ पे, समझ में आया। ओके, तो देखो अब यहाँ पे इंपल्स तुम्हारा फ्लो करके आ रहा है, इंपल्स इज फ्लोइंग, इंपल्स फ्लो होकर तुम्हारा आ रहा है। ओके, जब यहाँ पे इंपल्स पर फ्लो करके आता है तो पहले क्या होता है, यहाँ पे कुछ कैल्शियम गेट खुल जाते हैं, देयर इज द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम गेट, समझ में आया। जब एक इंपल्स तुम्हारा यहाँ पे फ्लो करके आता है तो देयर इज द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम गेट, तो अब तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा बच्चे, कैल्शियम का एंट्री हो जाएगा, कैल्शियम आयन का एंट्री हो जाएगा। ठीक, एंड नाउ द कैल्शियम आयन दे सराउंड द सिनेप्टिक वेसिकल्स, कैल्शियम आयन दे सराउंड द सिनेप्टिक वेसिकल्स, उससे तुम्हारा क्या होगा, ओके टाइम्स अप हो गया है। तो कैल्शियम आयन की वजह से ये तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे, दे रिलीज देयर केमिकल्स, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज करते हैं बच्चा लोग, और एक नेक्स्ट क्लास में इसका बनाऊंगा समझाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा, तो टाइम अप हो गया है। तो दे रिलीज द केमिकल्स हियर, उससे अगेन तुम्हारा क्या होता है, ये मेम्ब्रेन तुम्हारा डीपोलराइज हो जाता है, एंड अगेन यहाँ पे थर्मल ट्रांसफर होता है। मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। ठीक,